So good afternoon everyone. Join the class fast. क्या बात है शुभम, रूपल, बाकी स्टूडेंट्स कहाँ हैं? ऊप्स की क्लास ओवर हो गई आपकी? Yes everyone. हाँ जी रूपल, you there? Yes, good afternoon everyone. Okay, so shall we start? Am I audible properly? Yes, ma'am. Okay. चलिए, so till now we have started a new module which is called transaction management, and in that we have studied about what is a transaction, what are the various properties of a transaction, the state diagram, and we are now moving into concurrency control. So for studying concurrency control we are studying about serial schedules. So schedule का हमने देखा था, we divide a schedule into two parts. One is serial and non-serial. Then we have seen what is a serial schedule, what are the characteristics of a serial schedule. Then non-serial schedule को हम further divide करते हैं into serializable and non-serializable. So serializable schedule, is it clear? What are serializable schedule? क्या होते हैं serializable schedule? The schedule which are equivalent to basically Serial schedule. yes, we are talking about non-serial schedule. So non-serial schedule which are equivalent to serial schedule, by swapping your conflicting operations we make them equivalent. और अगर हम by swapping the conflicting operations के through करते हैं तो उसको हम बोलते हैं conflict serializability, or we call them as conflict serializable schedule. Now how do we test whether a schedule is a conflict serializable schedule? We do so by using precedence graph. We have studied that. Precedence graph सबको draw करना आता है. You all can able to do that. Yes, ma'am. So we'll be doing just ये एक example कर रहे हैं. All of you can see on your screen that there is one question given that we have to check whether a schedule is conflict serializable or not. For that you have to follow certain steps. The very first step is you have to list down all the conflicting operation. Then you have to make a precedence graph. उसके लिए जितनी भी transaction schedule में होती है, for every transaction you have to draw nodes, right? Now for every pair of conflicting operation you have to draw an edge from one node to another edge. ठीक है, from one node to another node. उसके बाद last step में क्या होता है, if you see there is a cycle, अगर कोई cycle, obviously your graph is a directed one. ठीक है, directed graph आपको draw करने हैं. And if there is a cycle persist in a graph, that means a graph is not conflict serializable. That means you cannot convert your non-serial schedule into serial one. Okay? But if there is no cycle, then there is a conflict serializability present in this schedule. So uske liye we'll be trying this numerical first, then we'll be moving to view serializability, which is our next part of serial schedule. So यहाँ पर देखो problem number 1. This is a schedule given to you. Yes. अब इसको हमने कैसे सॉल्व करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल विल राइट इट इन प्रॉपर ट्रांजैक्शन फॉर्म कि यहाँ पर देखो कितने हैं, R1 R2 R1 R2 R3, दैट मींस देयर आर 3 ट्रांजैक्शंस प्रेजेंट. तो इसको हम कैसे लिखेंगे? T1 T2 and T3. Then first operation is RA, we are reading a data item A. Then R2 R2 हो रहा है, ठीक है. Then our transaction A is
transaction 1 is again reading a data item B. Then after that, there is one more transaction T3 which is performing a read operation. Okay. Then write operation on A by transaction 1, and then write operation by transaction 2 on data item B. Okay. Is it clear? ये इतना clear है? Now in step 1, you have to draw all the conflicting pairs, or list down all the conflicting pairs. So how do we check for conflicting pairs? We'll start with T1. तो RA को कंपेयर करो T2 के RA से. ये कंफ्लिक्ट बिल्कुल नहीं करेगा बिकॉज कंफ्लिक्टिंग की 3 कंडीशंस है. क्या क्या कंडीशंस है हमारी? What are the 3 conditions for सेम डाटा टाइप में होना चाहिए, एटलीस्ट एक आपको राइट होना चाहिए, और ये मतलब जो ऑपरेशन है वो अलग अलग ट्रांजैक्शन के होने चाहिए. अच्छा, यस यस, यहाँ पे देखो. सो दिस फर्स्ट रीड ऑपरेशन इज नॉट हैविंग एनी कंफ्लिक्टिंग, क्योंकि रीड कभी भी किसी डेटा आइटम को कोई भी ट्रांजैक्शन सेम दो यहाँ पर सेम डेटा आइटम्स को पे रीड परफॉर्म हो रहा है, बट यहाँ पे कोई कंफ्लिक्टिंग नहीं है. सिमिलरली यहाँ कोई कंफ्लिक्टिंग नहीं है. अब हम T2 के पास आएंगे. अब ये RA इसके साथ भी नहीं कर रहा, इसके साथ भी नहीं कर रहा. नीचे देखो, T2 इज कंफ्लिक्टिंग विद WA. तो यहाँ पर पहला पेयर मिल गया हमारे को. This is conflicting with this. ठीक है. उसके बाद देखो, अब ये इसके साथ कंफ्लिक्ट कर रहा है और किसी के साथ ये वाला ऑपरेशन कंफ्लिक्ट नहीं कर रहा है. नाउ कम्स टू दिस. तो ये जैसे ही देखो साथ साथ आपको वो ड्रॉ करते जाना है एज. तो यहाँ पे लेट मी टेक, ये T1 है आपका. दिस इज T2. एंड यहाँ पे T3 है आपका. ठीक है. अब बताओ T2 से T1 पे एक एज जाएगी, क्योंकि T2 का ऑपरेशन कंफ्लिक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर एक एज जानी है. ठीक है. उसके बाद देखो, अब किसकी टर्न है चेक करने की? RB की. RB किसी के साथ कर रहा है? RB is conflicting with this right B of T2. So there must be a edge from T3 to T3 to T2. ये आपका T3 था. T3 to T2 एक एज होनी चाहिए. ठीक है. Now go for this. ये किसी के साथ कंफ्लिक्ट कर रहा है? नहीं कर रहा, और ये भी नहीं कर रहा है. ठीक है. तो यहाँ पे देखो, ये आपका ग्राफ बन रहा है. मैम T1 से T2 के लिए भी एक होगा ना? एक मिनट. ये तो मैंने खुद लिखा है, ये थोड़ी ऑपरेशन है. ये वाला W2. मैम RB और WB पे. हाँ, RB और WB, यस, ये वाला RB और ये वाला इसके साथ कंफ्लिक्ट कर रहा है. तो T1 से T2 पे एक एज जाएगी. T1 से T2 पे एक एज जाएगी. ठीक है. तो यहाँ पे हमारी साइकिल फॉर्म हो गई है. दिस एंड दिस इज अ साइकिल. सो साइकिल की वजह से हम क्लियरली कह सकते हैं कि यहाँ पर कंफ्लिक्ट serializability नहीं है. सो लेट मी शो यू डाउनलोड हियर. ये हमारा बना है ग्राफ. ठीक है. और इसमें साइकिल परसिस्ट कर रही है. दैट मीन्स इट इज नॉट कंफ्लिक्ट serializable. क्लियर है? ये सब स्टूडेंट्स को आगे है. दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने ऊपर दिखाया था, जिसमें 2 शेड्यूल्स थे, दोनों S1 S2 के साथ, क्योंकि जो भी ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आते हैं थोड़ा सा लेंदी में आता है. ठीक है. तो इसको काफी आपको प्रैक्टिस करनी है, एंड यू नीड टू सॉल्व दिस इन फ्यू सेकेंड्स. ठीक है. हो गया सबका क्लियर? कंफ्लिक्ट serializability में कोई डाउट है? नो मैम.
Okay, so now the next topic we are starting is view serializability. मैम हमने अभी जो ये करा है ये S2 कंडीशन थी क्या? मैंने एक्चुअली 3 मिनट बाद ज्वाइन करा था. हेलो What were you saying? मैम, जो अभी हमने ये RA और RB वाले जो करे हैं 3 ट्रांजैक्शन जो है ये हमने S2 का करा है क्या? Yeah, we have solved this question. This मैम मेरा क्वेश्चन. ये वाला problem number 1. This problem. ओके. ठीक है, वो वाला नहीं किया है, वो तो I have given to you. किसी ने मुझे भेजा ही नहीं ना उसका solution. ये वाला क्वेश्चन बोल रहे हो आप? This one. ये तो हो गया था ना, तभी मैंने पूछा. अच्छा, ये तो करा दिया था ना आपने लास्ट क्लास में. नहीं मैंने नहीं कराया था. S1 हुआ था, S2 का उसी के ब्याज पे निकाल के मैं बताना था कि सिर्फ वो था. अच्छा, तो क्या आंसर है इसका? इसका कॉन्फ्लिक्ट था. चलो ठीक है. So we'll be starting a new topic now, that is view serializability. Conflict serializability के बाद देखो जो serializable schedule है, there are two types. One is conflict serializable, then view serializable. Now, what is a test for view serializability, or how can we say that a schedule is view equivalent? देखो view equivalent का मतलब क्या बनता है, नाम से ही क्लियर हो रहा है, दो शेड्यूल जो आपस में एक जैसे दिखते हैं. मतलब कि एक जैसे दिखने का मतलब है कि अगर एक शेड्यूल के अंदर दो ट्रांजैक्शन है T1 T2 और दूसरे शेड्यूल के अंदर भी दो ट्रांजैक्शन है, नाउ यू हैव टू मेक देम व्यू इक्विवेलेंट. हाउ कैन यू से दैट दे आर व्यू इक्विवेलेंट टू ईच अदर? इफ दे फॉलो सर्टेन कंडीशंस. अगर ये उनके अंदर ये तीन कंडीशंस इक्वल है, दैट मींस दे आर व्यू इक्विवेलेंट टू ईच अदर. अब यहाँ पर देखो, ओके नाउ जस्ट सी हियर. देखो, हैव यू रीड दिस डेफिनेशन? ये किसी ने रीड किया है? सी, अब आपको देखो हमेशा नॉन सीरियल शेड्यूल को किस शेड्यूल के साथ कंपेयर करना है? सीरियल शेड्यूल के साथ. ठीक है. अब अगर देखो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी में तो हम कह रहे थे कि अगर किसी भी नॉन सीरियल शेड्यूल को हम सीरियल में कन्वर्ट कर सकते हैं. हाउ? बाय स्वैपिंग योर कन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन. दैट मीन्स वी कैन से दे आर कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल. अब व्यू सीरियलाइजेबिलिटी के लिए आपको क्या कहना है कि इफ एनी योर नॉन सीरियल शेड्यूल इज व्यू इक्विवेलेंट टू योर सीरियल शेड्यूल, तो हम बोल सकते हैं कि वो व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाउ कैन वी से दैट इट इज व्यू इक्विवेलेंट? ठीक है. तो व्यू इक्विवेलेंट के लिए तीन कंडीशंस हमने पढ़नी है. व्हाट आर द थ्री कंडीशंस? नाउ जस्ट सी हियर. ये देखो, ये तीन कंडीशंस देखो. द वेरी फर्स्ट कंडीशन, यस नोट डाउन कर लो इन कंडीशंस को, देन वी विल बी टेस्टिंग दीज कंडीशंस. द वेरी फर्स्ट कंडीशन, आप लोगों को क्लियर हो रहा है कि हम क्या पढ़ रहे हैं? यस मैम. देखो, हमें क्या करना है, वी हैव टू मेक अ सीरियल नॉन सीरियल शेड्यूल व्यू इक्विवेलेंट टू अ सीरियल शेड्यूल. उसके लिए देयर आर थ्री कंडीशंस वी नीड टू फुलफिल. द वेरी फर्स्ट कंडीशन इज इनिशियल रीड इन बोथ द शेड्यूल्स शुड बी सेम. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? देखो, अगर हम कह रहे हैं हमारे पास दो शेड्यूल है, अगर हम बोल रहे हैं कि T1 इज अ ट्रांजेक्शन जो सबसे पहले, शेड्यूल S1 की बात कर रही हूँ मैं, T1 इज अ ट्रांजेक्शन जो सबसे पहले किसी डेटा आइटम X को रीड कर रही है.
तो दूसरे शेड्यूल में भी आपकी, मैं इसका एग्जांपल देती हूँ, लेट मी शो यू। दूसरे शेड्यूल में भी T1 को ही रीड करना है, तो आप बोल सकते हो कि दो शेड्यूल आपस में सेम है। लेट मी जस्ट गिव एन एग्जांपल कि अभी ये आपका S1 शेड्यूल है, इसके अंदर एक T1 है और एक T2 है, ठीक है। अब T1 सबसे पहले रीड कर रही है किसी डेटा आइटम X को, उसके बाद आपका जो T2 है, ठीक है, T2 आपका रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है X पे, आगे कुछ भी हो रहा है वी आर नॉट कंसर्न ऑफ दैट, ठीक है। अब यहाँ पर आप दूसरे शेड्यूल का एग्जांपल देखो। दूसरा शेड्यूल क्या कहता है, S2, इसके पास भी दो ट्रांजेक्शन है T1 T2, ठीक है। अब इसके अंदर भी there is a transaction T1 which is performing an initial read on a data item X. The data item should be same, ठीक है। So and then T2 is doing anything we are not concerned of. So यहाँ पर देखो the very first condition is fulfilled in these two schedule S1 and S2, ठीक है। So we can say that these two schedule S1 and S2 can be view equivalent because the first condition is fulfilled. The very first condition is, it says that initial reads in both the schedule must be same. What is the meaning of that? अगर यहाँ पे दो transaction है, if the initial read is performed by TI on a data item X, so in the other schedule the initial read should be performed by the same transaction TI on a same data item X. Am I able to clear you this? ये क्लियर हुआ इनिशियल रीड वाला? सबको क्लियर हुआ ये पॉइंट? हम एक बार फिर से बता देंगे। देखो, दो शेड्यूल है S1 S2, आपको दो शेड्यूल को आपस में सेम कराना है, मतलब आपस में बोलना है कि ये दोनों व्यू इक्विवेलेंट है। अब इसके लिए पहली कंडीशन क्या कहती है कि इनिशियली जो ट्रांजैक्शन शेड्यूल 1 में किसी डेटा आइटम को रीड कर रही है, दूसरे शेड्यूल में भी वही सेम ट्रांजैक्शन आपके सेम डेटा आइटम को रीड करेगी, तभी हम बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो S1 जो है T1, S1 के अंदर T1 सबसे पहले रीड कर रही है X को, S2 के अंदर भी T1 ही रीड कर रही है X को, समझ रहे हो? इट इज नॉट लाइक कि यहाँ पर अगर ये ऐसा होता, अगर ये ऐसा होता तो द फर्स्ट कंडीशन फेल्स, क्योंकि S1 में तो T1 रीड कर रही है X को और S2 में कौन रीड कर रहा है सबसे पहले, T2, समझ रहे हो? बट यहाँ पर if it is like this, so we can say that the first condition is fulfilled, initial readers must be same for all the data items, समझ रहे हो? अब यहाँ पर जैसे इसके लिए देखो, अब यहाँ पे सबसे पहले जो डेटा आइटम Y अगर यूज हो रहा है, so अगर T2 is reading the data item Y initially, और उसके बाद कोई भी उस पर राइट परफॉर्म कर सकता है, ठीक है, ये अगर उस पर राइट परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब दूसरी शेड्यूल में भी अगर T2 ही सबसे पहले, दूसरे शेड्यूल में भी अगर T2 ही सबसे पहले कर रही है रीड ऑन डेटा आइटम Y, देखो इस शेड्यूल में भी T2 सबसे पहले रीड कर रही है Y को, इस शेड्यूल में भी T2 सबसे पहले रीड कर रही है, तो इनिशियल रीडर्स इन बोथ द शेड्यूल फॉर ऑल द डेटा आइटम्स आर सेम। समझे कि नहीं समझे? हाँ जी कृष्ण। तो मैम रीड एक्स पहले से कर चुका था, इसीलिए उसका कोई वो नहीं रहा, डायरेक्ट वाई पे हो गया। तो एक्स को पहले से रीड कर चुका था, इसलिए जो T2 में हमारा जो है सीरियल 1 में, आगे इसलिए बोलो। हमारा जरूरी नहीं है रीड एक्स ट्रांजेक्शन 2 में सीरियल 2 में। देखो ये दो अलग अलग ट्रांजैक्शन है। अब इसमें ये इस शेड्यूल के अंदर T1 जो है वो इनिशियली X को रीड कर रही है ना, यस मैम। और फिर ये आगे कुछ भी कर रहा है हमें इससे मतलब नहीं है, ठीक है। और दूसरे शेड्यूल में भी T1 ट्रांजैक्शन ही सबसे पहले अपॉर्चुनिटी ले रही है किसी सेम डेटा आइटम X को रीड करने की, तो देखो दोनों में सेम ऑपरेशन हो रहा है। इसके अंदर भी यस T1 रीड कर रही है, इसके अंदर भी T1 रीड कर रही है डेटा आइटम X को, इसके अंदर भी T2 सबसे पहले Y को रीड कर रहा है और इसके अंदर भी T2 सबसे पहले Y को रीड कर रहा है। तो हमारी जो फर्स्ट थंब रूल है कि इनिशियल रीडर्स, इनिशियली किसी भी डेटा आइटम को जो ट्रांजैक्शन रीड कर रही है दूसरे शेड्यूल में भी सेम डेटा आइटम को वही ट्रांजैक्शन रीड करेगी, इसका मतलब ये है।
बहुत ज्यादा Okay. सिंपल लैंग्वेज में आई हैव गिवन यू। Yes. क्लियर हुआ है सबको? Yes, ma'am. यस, आयुष, अंकुर, अमित, क्लियर हुआ है? यस मैम। हाँ जी, मेहुल कुछ क्लियर हो रहा है? यस मैम। प्रियंका? Yes, ma'am. Are you able to understand what I'm teaching in the class? कुछ क्लियर हो रहा है? अरे, you can say yes or no. Are you there in the class, listening in the class or not? कमाल है। चलो, now go for the next thumb rule. The next thumb rule is initial जो read write का sequence होता है वो सेम होना चाहिए। रीड राइट का सीक्वेंस क्या है? नाउ लेट मी रीड दिस फॉर यू फर्स्ट, उसके बाद बताती हूँ कि जैसे आपके पास दो शेड्यूल है। अब इसमें देखो, रीड राइट सीक्वेंस मस्ट बी सेम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ये वाला नोट कर लिया है आपने एग्जाम्पल? यस, हैव यू नोटेड इट डाउन? इसको नोट कर लो। Yes, ma'am. अब यहाँ पे देखो, दो शेड्यूल आपस में सेम कैसे हो सकते हैं, वही हम बता रहे हैं कि अगर किसी शेड्यूल S1 में TI जो है वो सबसे पहले किसी डेटा आइटम को रीड कर रही है, फिर TJ जो है उसको राइट कर रहा है इन शेड्यूल S1। रीड राइट सीक्वेंस सेम होना चाहिए, मतलब कि अगर T1 जो है वो किसी डेटा आइटम को रीड करके T2 उसको राइट कर रहा है, तो दूसरे शेड्यूल में भी ऐसा ही होना चाहिए कि TI रीड करे और T2 राइट करे। तभी तो हम बोल सकते हैं ना, दे आर व्यू इक्विवेलेंट। व्यू इक्विवेलेंट में जैसे देखो, अगर दो पीपल को आप बोलते हो कि दे बोथ लुक सेम, तो हाउ यू विल कैटेगराइज कि कैसे बोलते हो कि दीज टू पीपल लुक सेम? अगर उनकी इफ देयर आईज आर एग्जैक्टली द सेम, अगर उनके फीचर्स बिल्कुल सेम है, तभी तो तुम बोलते हो। तो उसी तरीके से आप बोल रहे हो कि अगर दो शेड्यूल आपस में व्यू इक्विवेलेंट है, तो दोनों के जो ऑपरेशंस है, पहली कंडीशन क्या है कि इनिशियल रीडर्स दोनों शेड्यूल के अंदर सेम होना चाहिए। दूसरा थंब रूल क्या है कि रीड राइट सीक्वेंस सेम होना चाहिए। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ दिस अगेन, कि अगर आपके पास ये शेड्यूल है T1, शेड्यूल S1 की बात कर रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर इस शेड्यूल S1 में आपकी T1 जो है सबसे पहले किसी डेटा आइटम X को रीड कर रही है, उसके बाद यहाँ पर T2 जो है वो उसको राइट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद वो कुछ भी कर रहे हैं हमें नहीं पता, ठीक है। अगर ये ऐसा हो रहा है, ठीक है। अब दूसरे शेड्यूल की अगर मैं बात करती हूँ, T1 and T2, so read write sequence must be same. That means if in the first schedule, here we can see that T1 is reading this data item X and T2 is updating this data item X. So this sequence कि T1 ने read किया, T2 ने write किया, ये sequence इस schedule में भी same होना चाहिए। तो यहाँ पर T1 ने read किया और T2 ने write किया, ठीक है। तो ये सीक्वेंस सेम है, तो दिस सीक्वेंस इज मैचिंग। और दूसरे डेटा आइटम के लिए भी सीक्वेंस सेम होना चाहिए कि यहाँ पर ऊपर वाले में देखो T1 ही रीड कर रहा है, T1 ही राइट कर रहा है, तो ये सीक्वेंस भी सेम होना चाहिए। अगर मैं ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर T2 ने तो रीड परफॉर्म किया वाई पे और फिर T1 ने उस पर राइट परफॉर्म कर दिया, नाउ दिस सीक्वेंस इज नॉट मैचिंग। Schedule S1 में T1 is reading this data item Y and writing it itself, and in the another schedule यहाँ पर T2 read कर रहा है और T1 write कर रहा है, तो this sequence is not matching। तो यहाँ पर जो second thumb rule है वो fail हो रहा है, समझ रहे हो? View equivalent के लिए second thumb rule clear हुआ है? Yes, ma'am. ठीक है। So पहला thumb rule क्या कहता है कि initial readers for all the data items must be same. Second thumb rule says that the read write sequence for all the data item must be same in both the schedule. And the third जो आपका thumb rule है वो ये कहता है कि अगर schedule S1 में the last update for any data item, अगर T1 सबसे last में Y को update कर रहा है, समझ रहे हो, और यहाँ पर कौन अपडेट कर रहा है X को सबसे लास्ट में? T2।
तो दूसरे शेड्यूल में भी T1 should get an opportunity for updating this schedule Y for this data item Y, और T2 ही X को अपडेट करे, मतलब कि फाइनल अपडेशन made to any data item in both the schedule should be same by a transaction. यहाँ पर देखो, तभी ये तीन अगर आपके थंब रूल मैच होंगे तभी आप बोल सकते हो कि ये दो शेड्यूल आपस में व्यू सीरियलाइजेबल है. फाइनल राइटर्स मस्ट बी सेम फॉर ऑल द डेटा आइटम्स. ये पॉइंट क्लियर हुआ है कि फॉर ईच डेटा आइटम X, if X has been updated at last by a transaction Ti in schedule S1, then in this another schedule S2, Ti ही update करे X को. It is not like कि Tj कर लेगा. ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है तो थर्ड कंडीशन आपकी मैच हो रही है. समझ रहे हो? यहाँ पर इस शेड्यूल में देखो, इस शेड्यूल में T1 जो है सबसे Y को राइट लास्ट में Y पे राइट ऑपरेशन किसने परफॉर्म किया? T1 ने. और X पे लास्ट ऑपरेशन किसने परफॉर्म किया? T2 ने. दूसरे शेड्यूल में भी देखो, T1 ने सबसे लास्ट में Y पे राइट किया और T2 ने सबसे लास्ट T2 ने यहाँ पर X पे राइट किया हुआ लास्ट में. उसके बाद X पे किसी ने कोई ऑपरेशन नहीं किया, तो ये सीक्वेंस मैच हो रहा है. फाइनल राइटर सेम है. Y के लिए T1 है, इसमें भी Y के लिए T1 है, यहाँ पर X के लिए T2 है, इसमें भी X के लिए T2 है. तो फाइनल राइटर्स आर सेम. क्लियर है? Are the 3 points are clear to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो कौन रिपीट करेगा इनको पॉइंट्स को? रोहित, रोल नंबर 93. Do you want to try? Yes, Rohit, Malvya, you want to try? Niharika? Why the strength is so low? आज क्लास की स्ट्रेंथ इतनी कम क्यों है? लास्ट क्लास में कितने थे? ऊप्स की क्लास में ऊप्स की क्लास में कितने बच्चे थे? मैम उसका ध्यान नहीं दिया, बट सुबह जो क्लास थी उसमें 38 थे फर्स्ट क्लास में एक्स्ट्रा. अभी तो सिर्फ 23 स्टूडेंट्स है, बहुत कम स्ट्रेंथ है. चलो, नाउ हाउ विल यू टेल कि कोई शेड्यूल व्यू सीरियलाइजेबल है कि नहीं है? ठीक है, व्यू सीरियलाइजेबिलिटी की डेफिनेशन सबको क्लियर हो गई है? डेफिनेशन क्लियर है व्यू सीरियलाइजेबिलिटी की? If a non-serial schedule is view equivalent to a serial schedule, we can say that it is a view serializable schedule. And for view equivalent, you have 3 conditions to match. The first condition says that initial readers for all the data items must be same. Second condition says that the read-write sequence in both the schedule must be same. And the third says that the final writers for all the data items must be same in both the schedule. क्लियर है? इसमें से किसी भी पॉइंट पे किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आस्क बिफोर प्रोसीडिंग अहेड. ये क्लियर है तीनों पॉइंट? व्यू इक्विवेलेंट कब कहते हैं दो शेड्यूल को? यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? यस मैम. चलो ठीक है, अब व्यू सीरियलाइजेबिलिटी पे क्वेश्चन आता है. ठीक है, ये जैसे ये प्रॉब्लम नंबर 1 है. इस प्रॉब्लम को देखो, आपको बताना है कि ये व्यू सीरियलाइजेबल है कि नहीं. ठीक है, अब इसको आप व्यू सीरियलाइजेबल बना सकते हो कि नहीं बना सकते, तो उसके लिए सबसे पहले कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी चेक करनी होती है कि इफ अ शेड्यूल इज कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल. मेरी बात को ध्यान से सुनो और चाहे तो लिख लो. इफ अ शेड्यूल इज कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, देन 100% sure you can say that it is also view serializable. So आपको व्यू सीरियलाइजेबल बताने के लिए सबसे पहले कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी टेस्ट करनी होती है. अगर तो कोई साइकिल परसिस्ट नहीं करती है ग्राफ में, then it is obviously you know that it is a conflict serializable schedule. And if it is a conflict serializable schedule, 100% you can say that without testing that it is your view serializable schedule also. ठीक है,
बट इसका जो वाइस वर्सा है that is not true, that every view serializable schedule is not always conflict serializable, but every conflict serializable schedule is always view serializable. क्लियर हुआ क्या बोला मैंने? यस मैम। ठीक है। सो अगर आपके पास जब भी व्यू serializability पे क्वेश्चन आता है, सबसे पहले आपको conflict serializability टेस्ट करनी है. For this question, you have to test the conflict serializability. We know that if a schedule is conflict serializable, it is also view serializable. So we have to test for conflict serializability first. So conflict serializability के लिए आपको conflicting operations निकालने पड़ेंगे, ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा. देखो इस वाले के लिए conflicting operations बताओ कौन कौन से होंगे. Here are 4 transactions. तो इसका ग्राफ ड्रॉ करो जल्दी से. Let me just show you this. अगर ये ऑपरेशंस आए हैं और ये ग्राफ आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसमें कोई साइकिल फॉर्म हो रही है, दो इट इज अ क्लोज्ड वन, बट इसके अंदर कोई साइकिल नहीं है. ठीक है, ये भी कोई साइकिल नहीं है और ये भी कोई साइकिल नहीं है. सो देयर इज नो साइकिल इन दिस ग्राफ. So it is conflict serializable schedule, and if it is conflict serializable, it is view serializable also. So आप सीधा सीधा लिख सकते हो कि क्योंकि ये conflict serializable है, ये view serializable schedule भी है. ठीक है. Now let's try the next problem. ये मैंने जो ये वाले notes है, I will put them in your classroom, Google Classroom, so that you can try the problems. ठीक है. Now see the next problem. यहाँ पर देखो, अब इसके लिए आपको चेक करना है, ये आपके पास है. अब इसका ग्राफ जल्दी से बताओगे? कैन यू टेल मी द ग्राफ ऑफ दिस थिंग? इस शेड्यूल का ग्राफ बनाओ जल्दी से. T1, ये है आपका T2 और ये है आपका T3. ठीक है. T1 से T1 से T3 T1 से T3. ओके, यस. और T2 से T3 और T1. T2 से T3 भी है, यस. और T2 से T1 भी है. गुड. T2 से T1 भी है. और T3 से T1 भी है. T3 से T1 भी तो है. तो ये आपका ग्राफ बन रहा है. फिर इसके अंदर आप देखो, इस ग्राफ के अंदर साइकिल आ गई. ये साइकिल है, ये वाली. देखो ये वाली तो साइकिल नहीं थी, बट यहाँ पर साइकिल है. साइकिल है, दैट मीन्स इट इज नॉट conflict serializable. अब क्योंकि ये conflict serializable नहीं है, नाउ इट मे बी व्यू serializable और मे नॉट बी व्यू serializable. अब जब पहला टेस्ट आपका फेल हो जाता है for view serializability, you have to go for next test. Now you have to search for blind right. Let me write this for you. Blind right. Blind right operations. Now what is the meaning of blind right operations? Blind right operations वो operations होते हैं जिसमें कोई भी transaction किसी भी data item पे operation perform करती है right का without performing a read operation first. Blind write मतलब without reading a data item, it is straight away start writing on it. समझ रहे हो? So अगर कोई भी ऐसा operation present है, so blind write अगर है तो वो व्यू serializable हो सकता है. अगर उसके अंदर blind write operation नहीं present है, that means it is 100% not view serializable. ठीक है, मैं दोबारा से repeat करती हूँ. If the first test fails of conflict serializability, for testing for view serializability, you have to check for blind writes. Blind write का मतलब क्या है? क्या हो गया? एक मिनट. Yes. सबको screen visible है? Okay. Now what is the meaning of blind write? If there exists a blind write, तो आप बोल सकते हो कि आपका वो व्यू serializable होता है, हो सकता है. बट अगर कोई blind write है नहीं है ना, तो 100% आपका जो शेड्यूल है वो व्यू serializable शेड्यूल नहीं है. Now you have to check for blind writes.
You need to have a presence of blind write for a view serializable schedule. ठीक है, अब इसके अंदर देखो, इस ग्राफ के अंदर देखो, इसके अंदर देखो, यहाँ पे ब्लाइंड राइट कोई भी ट्रांजेक्शन ब्लाइंड राइट परफॉर्म कर रही है? T3. यस, सो हेयर T3 ट्रांजैक्शन स्पेसिफिक है या पूरे शेड्यूल में चेक करना है? नहीं, ये ट्रांजैक्शन स्पेसिफिक है, शेड्यूल में कैसे ब्लाइंड राइट होगा ना, कि हर एक ट्रांजैक्शन अपना अपना रीड कर रही है, अपना अपना राइट कर रही है। अब तीनों ट्रांजैक्शन में देखो कौन सी ट्रांजैक्शन है जो ब्लाइंड राइट ऑपरेशन कर रही है, तो T3 जो है वो ब्लाइंड राइट कर रही है, मतलब कि पूरे शेड्यूल के अंदर देयर इज ब्लाइंड राइट ऑपरेशन प्रेजेंट विच इज मेड बाय T3। अगर कोई ब्लाइंड राइट नहीं होता, एक और मैं क्विक बता सकती हूँ कि अगर आपका किसी, देखो अगर ये यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आता है तो यू हैव टू गो बाय अ प्रोसीजर कि आपको पहले कॉन्फ्लिक्ट रियलाइजेबिलिटी टेस्ट करना पड़ेगा, फिर ब्लाइंड राइट टेस्ट करना पड़ेगा। बट अगर ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है व्यू रियलाइजेबिलिटी में, जब जो ऐसे ही आता है, क्योंकि उसमें दे जस्ट वांट टू टेस्ट कि आपको कितना आता है, तो विदाउट चेकिंग फॉर कॉन्फ्लिक्ट रियलाइजेबिलिटी यू जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल चेक फॉर ब्लाइंड राइट। अगर ब्लाइंड राइट नहीं है तो वो 100% व्यू serializable नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट serializability टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। अगर तो उसके अंदर ब्लाइंड राइट ऑपरेशन प्रेजेंट है तो इट मे और मे नॉट बी व्यू serializable। फिर उसके लिए आप कॉन्फ्लिक्ट serializability के लिए साइकिल ड्रॉ करो, अगर तो साइकिल परसिस्ट नहीं करती that means it is conflict serializable and it is view serializable also, but if there is a cycle they may again फिर से कंडीशन आ जाती है कि वो व्यू serializable हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो उसके लिए अगर तो देखो यहाँ पर ब्लाइंड राइट प्रेजेंट है, जो ट्रांजेक्शन T3 है वो राइट कर रही है A पे विदाउट राइटिंग रीडिंग ऑन इट। फिर उसके लिए अब आपको तीसरी कंडीशन चेक करनी है, वो होता है डिपेंडेंसी ग्राफ। डिपेंडेंसी, वैसे एक चीज मैं बता दूं कि ये दिस क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है व्यू serializable का, तो वो इन दो क्वेश्चन में ही सॉल्व हो जाता है, ब्लाइंड राइट में और कॉन्फ्लिक्ट serializability में, तीसरे तक पहुंचता ही नहीं है। बट फिर भी क्योंकि इट इज अ पार्ट, सो वी विल बी डिस्कसिंग ऑल द थ्री मेथड्स। क्लियर हो रहा है कि कंफ्यूज हो रहे हो कहीं पे? Clear है मैम। इसको ना थोड़ा सा ये नोट्स, आई विल ट्राई टू पुट द नोट्स टुडे इटसेल्फ सो दैट आप इसको थॉरली खुद से रीड करो, ठीक है, एंड यू विल सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑन योर ओन। अभी तो आप लोग नहीं कर पा रहे हो, तो डिपेंडेंसी ग्राफ लास्ट में ड्रॉ करते हैं। डिपेंडेंसी ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, ये जो तीन कंडीशन बताई थी ना मैंने, इनिशियल रीड और रीड राइट सीक्वेंस, उस पे उसके हेल्प से वील ड्रॉ दिस डिपेंडेंसी ग्राफ। तो यहाँ पर देखो ऊपर में हमने देखा था कि T1 जो है सबसे पहले A को रीड कर रही है और T3 जो है वो सबसे पहले A को अपडेट कर रही है, किसी डेटा आइटम A को। तो ये इसमें देखो T1 इज फर्स्ट ऑफ ऑल रीडिंग दिस डेटा आइटम A, T1 ने सबसे पहले रीड किया ना, और उसके बाद T3 ने सबसे पहले राइट किया। तो T1 और T3 में एक एज ड्रॉ होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी एज क्या होनी चाहिए डिपेंडेंसी ग्राफ को ड्रॉ करने की, एक हमने ये कर ली कि T1 टू T3 एक एज ड्रॉ कर ली। उसके बाद जो फाइनल अपडेट बन रहा है डेटा आइटम A पे, वो कौन कर रहा है? T1 ही कर रहा है। देखो लास्ट में देखो, यहाँ पे देखो फाइनल अपडेट जो जो A डेटा आइटम, क्योंकि यहाँ पर एक ही है आपका डेटा आइटम, और फाइनल अपडेट कौन कर रहा है? T1 कर रहा है। तो T1 सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट होना चाहिए T2 और T3 से। तो T2 और T3 भी T1 पे डिपेंडेंट है। तो इस डिपेंडेंसी को अगर आप ड्रॉ करोगे विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ, तो इस तरीके का ग्राफ आपके पास आएगा कि T2 should be dependent on T1, T2 डिपेंडेंट है T1 पे, और यहाँ पर देखो T1 is depending upon T3. How? Just see this thing again. हमने देखा था ना कि T1 से T3 एक एज हमने ड्रॉ करी थी, क्योंकि T1 सबसे पहले रीड कर रहा है और T3 सबसे पहले राइट कर रहा है। तो T1 से T3 एक एज हमने ड्रॉ की थी। उसके बाद T2 और T3 दोनों